रिलेशंस। देखिए, हमने सेट थ्योरी में पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ी है, तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में सबसे पहले फिर बताते हैं। लेट ए इक्वल टू ए बी एंड बी इज इक्वल टू सी डी। ए कार्टेशियन बी इज इक्वल टू ए बी प्रोडक्ट ऑफ सी डी ए सी ए डी बी सी और बी डी। ए सी इज कॉल्ड ऑर्डर पेयर। A belong to set A and C belong to set B. The two order pairs AC is equal to BD. This implies A is equal to B and C is equal to D. देखिए, हम ऑर्डर पेयर में एक कार्टेशियन B is not equal to B कार्टेशियन of A. The cardinal numbers of AB is 2 set A, sorry, cardinal number of B 2, cardinal number of A cartesians B 4. So therefore A cartesian B is equal to n of A into n of B. Similarly, n of B cartesian A is equal to n of A into n of B. So therefore cartesian number A B is equal to n of B of A is equal to n of A into n of B. If आप थोड़ा समझिए, A be the null set, let A be null set and B be null set, तो then A कार्टेशियन B क्या होगा? 0. n of Cartesian numbers this. If A is equal to set of this and B is equal to null set, so this implies n of A Cartesian B is equal to 0. देखिए, अब रिलेशन क्या है? रिलेशन भाई जैसे राम और श्याम का है, राम और श्याम दोनों भाई हैं, ये भी एक रिलेशन है, भाई बहन हैं, मदर फादर हैं, तो ये सब रिलेशंस इससे जुड़े हुए हैं। और आप देखिए, डेफिनेशन रिलेशंस, let A and B, let A and B are two sets, two non-empty sets. Two non-empty sets, then any subset of A Cartesian B is called relation
हम लिख सकते हैं एच ए आर बी या और ए बी बिलोंग टू आर। अदर्स हम कह सकते हैं आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ए कार्टेशियन बी। अब ए बी इज ऑर्डर पेयर्स, ए इज डोमेन and B is range। अब नंबर ऑफ रिलेशंस के बारे में बात करेंगे। लेट E is the set of one, two, and B is the set of 3, 4. The number of relations either NA is equal to 2, NB is equal to 2. Number of relations टू की पावर 2 into 2, 2 की पावर 4, दिस इज इक्वल टू 16। मतलब आइदर 2 की पावर m into n नंबर ऑफ रिलेशंस। अब इसके बाद हम टाइप ऑफ रिलेशंस के बारे में बात करेंगे। टाइप ऑफ रिलेशंस में नंबर 1 एम्पैथी रिलेशंस। देखिए, जो हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इस रिलेशन में कोई भी एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में ना हो। समझ गए? इस रिलेशन में, हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट में कोई भी एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए इस रिलेशन का। इस कॉल्ड द एम्पैथी रिलेशंस। द एम्पैथी रिलेशंस, एम्पैथी सेट कह लो, एम्पैथी सेट null set of A cross B। Null set is a subset of A cross B। Empathy relations on set A is the smallest relation on set A। Second number, universal। Universal relations, all members of the relations is belong to a Cartesian B। For example, R is equal to A cross B। कह सकते हैं therefore A Cartesian B is a subset of
A Cartesian B is called the universal relations. Third number, identity relation. A relation are in a set A is called identity relation. On A, if R is equal to AA such that A belong to a set A, either A or A. For example, if A is the set of 1, 5, 7, or with the relation of 1, 1, 5, 5, 7, 7. Number 4, inverse of these relations. Inverse relations let, देखिए जिस रिलेशन में डोमेन की रेंज और रेंज की डोमेन हो जाए इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ रिलेशंस। हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, RBA relations from a set A to a set B, the inverse of the inverse relation of R denoted by R inverse is a relation from B to A defined by R inverse BA B belong to set B, set A.
देखिए ए relation to B, this implies B is R inverse relation of A. डोमेन ऑफ R मतलब कहने का मतलब ये है जो हमारा डोमेन था वो इनवर्स में क्या बन गया, रेंज। जो रेंज थी वो क्या बन गई, डोमेन। ये डोमेन और रेंज के बारे में एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं। देखिए दो सेट हैं आपके पास, एक बार समझिए। कोड कि दो सेट ए और बी, 1 2 3 ए बी सी डी। Domain of R is 1 2 3. Range of R A B C. Codomain is A B C D. All elements of this set B. तो कहने का मतलब जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं दैट इज ए डोमेन। सेट बी में जो जिनकी रेंज है ए बी सी इज कॉल्ड द रेंज ऑफ आर। कोडोमेन क्या है, द सेट ऑफ बी। देखिए टाइप ऑफ रिलेशन में ही नंबर 1 रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या है भाई रिफ्लेक्सिव रिलेशन? R is equal to AA for all values of A belong to set A. कोई भी a relation R is on the set of set to be reflexive. The every element of set A is related to itself. Now, every element of set A is related to set to itself. देखिए अब हमने आइडेंटिटी रिलेशन पढ़ा था। एन आइडेंटिटी रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। मतलब आइडेंटिटी रिलेशंस इज ए सबसेट ऑफ ए रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। सेकंड, सिमेट्रिक रिलेशंस
A relation R is a set of A is said to be symmetric if A belong to A या both ले लो, A B belong to A and AB belong to R, then BA belong to R. देखिए एक रिलेशन है, यदि रिलेशन में 2 3 है तो 3 2 भी इसमें होना चाहिए, 4 5 है तो 5 4 भी होना चाहिए, तभी हम उस रिलेशन को सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। ए और बी एक सेट में है, ए में ए बी इज द रिलेटेड ऑफ आर एंड देन आल्सो बी ए इज रिलेटेड टू आर। कहने का मतलब ये है a relation R in A is symmetric if and if only R is equal to R inverse। कहने का मतलब ये है R के अंदर जैसे फॉर एग्जाम्पल सेट लेट A इज इक्वल टू 1 2, तो R में हमारे पास हो गए 1 1 1 2 2 1 2 2। अब जब हम इसमें देखें 1 2 है तो 2 1 है, 1 1 है तो 1 1 है, तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस। तीसरे नंबर पर है ट्रांजिस्टिव रिलेशंस। A relation R on set A is said to be transitive. AB belong to R and BC belong to R. So this implies AC belong to R. For all values of A, B, C belong to set A. देखिए कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, पहले वाले का डोमेन और दूसरे वाले की रेंज से जो पेयर ऑर्डर पेयर बनेगा वो इसमें आ जाएगा, तो इसका मतलब वो रिलेशन ट्रांजिस्टिव रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, तो then R is equal to 1 1 1 2 2 3 1 3 तो 1 2 belong to R and 2 3 belong to R, तो this implies 1 और 3। ये देखिए इससे पेयर बनाइए 1 3, ये होना चाहिए, अब ये इसमें है, तो दिस रिलेशन इज कॉल्ड द ट्रांजिस्टिव रिलेशंस।
अब देखिए इक्विवेलेंस रिलेशंस। Any relation is non-empty set of A which is reflexive. Any relation on a empty set A which is reflexive, symmetric and is called an equivalence relation। देखिए कहने का मतलब रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, ट्रांजिस्टिव भी होना चाहिए। तीनों यदि हैं तो वो इक्विवेलेंस है। यदि एक भी नहीं है इनमें से, मान ले आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तो हैं लेकिन ट्रांजिस्टिव नहीं है, तो इज नॉट इक्विवेलेंस। कोई भी एक नहीं हो तो इक्विवेलेंस नहीं होगा। यदि तीनों हैं, सेटिस्फाई हो जाते हैं, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिस्टिव भी है, देन द इक्विवेलेंस रिलेशंस। हम एक्सरसाइज में आते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस। ये कहता है डिटरमाइन whether each of the following relations are reflexive, symmetric and transitive, then the relation R with the set of set A is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and 14 are with the relation of xy such that 3x minus y is equal to 0. Solution. देखिए सबसे पहले आर लिखेंगे हम। यदि डोमेन हम 1 लेते हैं तो आप देखिए इसमें 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0,
जब हम यहाँ पर x की वैल्यू 1 लेंगे तो y की 3 लेनी पड़ेगी, तो 1 3 का पेयर बनेगा हमारा। हम इसको बिल्डर फॉर रोस्टर फॉर्म में लिख लेंगे रिलेशन को, और फिर 2 6 फॉर एग्जाम्पल, और 3 9 4 12। अब देखिए लिखते रहिए आप 5 15। तो देखिए आप 15 जो है इज नॉट बिलोंग टू सेट ए, तो इट मीन्स ये पेयर्स नहीं आएगा। तो हमारे जो है ये पेयर्स आ गए। जब आपने रोस्टर फॉर्म में लिख लिया तो आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। नंबर 1 आप रिफ्लेक्सिव को देखेंगे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन को देखिए, मान लिया आपके पास 1 जो है सेट ए में है, तो 1 1 भी आपके रिलेशन में होना चाहिए, लेकिन बट 1 1 इज नॉट बिलोंग टू आर। तो यहीं पर हमारी डेफिनेशन क्या थी, ए बिलोंग टू आर। जो सेट दे रखा है उसके सभी एलिमेंट्स का इट सेल्फ के साथ पेयर ऑर्डर पेयर होना चाहिए, और वो इसमें नहीं है, और नहीं है तो आप लिख देंगे आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। नंबर 2 सिमेट्रिक रिलेशंस। देखिए एज 1 3 बिलोंग टू आर। देखो ये रहा 1 3 है, जब 1 3 है तो 3 1 देखो इसमें है, कहीं 3 1 नहीं है, 3 1 इज नॉट बिलोंग टू आर। तो हमारी डेफिनेशन क्या थी भाई, ए बी बिलोंग टू आर, तो दिस इंप्लाइज बी ए बिलोंग टू आर होना चाहिए, और वो नहीं है, और नहीं है तो आप क्या कहेंगे, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। नंबर 3 ट्रांजिस्टिव। एज 1 3 belong to R and 3 9 belong to R, so this implies 1 9 is not belong to R। देखिए 1 3 है, 3 9 है, तो 1 9 भी होना चाहिए, और 1 9 इसमें नहीं है, हमारे रिलेशन में नहीं आता, तो इसीलिए आप कहेंगे आर इज नॉट ट्रांजिस्टिव। हम बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं इसी तरह सॉल्यूशन करना है आपने। आप आराम से चलिए, आराम से क्वेश्चन सोल्व करिए, और देखिए क्वेश्चंस। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन, रिलेशन are in the set
set of natural numbers as R be the relation of xy such that y is equal to x plus 5 and x is लेस देन 4। आप समझिए इसको। सेट क्या है, मान ले लेट ए बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 सो ऑन। ये एक नेचुरल नंबर है आपके पास। नेचुरल नंबर का सेट है, मतलब ए बिलोंग टू एन। बिल्कुल ध्यान से करना है आपको, रोस्टर फॉर्म में लिखिए या ना लिखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। आपको रिलेशन, आपका रिलेशन दिया है एक्स वाई, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। जब आप देखेंगे आप एक्स की वैल्यू y की वैल्यू 1 लेते हैं तो x की वैल्यू आप 1 लेते हैं तो y की वैल्यू 6 आएगी, क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 है। y इज इक्वल टू 1 प्लस 5, y इज इक्वल टू 6, 1 6 का पेयर बनेगा। 2 लेते हैं तो 7 आ जाएगा, 3 लेते हैं तो 8 आएगा, 4 लेते हैं, नहीं लेना क्योंकि x इज लेस देन। अब आप सेल्फ अपने आप देखिए, नंबर 1 पर रिफ्लेक्सिव समझ गए। क्वेश्चन और समझ गए क्या ये, अब बताइए क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 1 1 भी नहीं है, 2 2 भी नहीं है, 3 3 भी नहीं है, कोई भी इस तरह का ऑर्डर पेयर नहीं है। तो हम रिफ्लेक्सिव में मतलब एज हम लिख लें 3 बिलोंग टू नेचुरल नंबर, सेट ए में है, या आप ऐसे कहते हैं ए है बट 3 3 नॉट बिलोंग टू आर। तो हमारी डेफिनेशन क्या थी? ए मतलब बिलोंग टू आर होना चाहिए, और ये तो ए इज नॉट बिलोंग टू आर है। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए इज ए नेचुरल नंबर, तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकंड है सिमेट्रिक। हमने देखा एज 1 6 बिलोंग टू आर, तो दिस इंप्लाइज 6 1 इज नॉट बिलोंग टू आर। हमारी डेफिनेशन क्या थी? लेट ए बी बिलोंग टू आर, तो दिस इंप्लाइज बी ए बिलोंग टू आर, और बी ए नहीं है आर में, तो हम कह देंगे आर इज नॉट सिमेट्रिक। आर इज नॉट सिमेट्रिक। सिमिलरली ट्रांजिटिव, देखिए मान ले सेट ए आपके पास ये है 1 2 3 4 5 6, ये ले लो, चलो
let 1 6 belong to R, अपना इसी से ले, and 3 8 belong to R. So this implies 1 8 is not belong to R. So therefore R is not transistor. इसमें देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन भी देखिए, समझिए, जब तक आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं बहुत सारे। हमारा तीसरा क्वेश्चन है set A set is equal to 1 2 3 4 5 6. RB the relation is XY such that Y is divisible by X जब हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है, सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव लेंगे। As A belong to R, for all values of A belong to set A. For examples, देखिए 1 1 भी हमारे रिलेशन में आ जाता है क्योंकि 1 is divisible by 1, 2 2 भी आ जाता है, 2 is divisible by 2, 3 3 भी आ जाता है, 3 is divisible by 3, 4 4 भी आ जाता है, so on 6 6 भी आ जाता है। तो इट मीन्स 1 1 को भाग दे देता है, 2 2 से भाग दे देता है, 3 3 को भाग देता है, 4 4 को भाग दे देता है। तो इस मीन्स हमारी जो डेफिनेशन थी A बिलोंग टू R फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ A बिलोंग टू सेट A, जितने भी इसमें बिलोंग करते हैं सभी के पेयर्स हमारे इसमें हैं। हमने रोस्टर फॉर्म में बनाने की जरूरत नहीं है, समझिए आप। Y इज ए डिविजिबल बाई ऑफ X, तो देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव। R is reflexive। कोई भी आप एग्जाम्पल दे सकते हो भाई, 3 3 बिलोंग टू R, 3 सेट बिलोंग टू A, 4 4 6 6, कोई भी एक एग्जाम्पल भी आप दे सकते हो। नंबर 2, सिमेट्रिक देखिए, आप यदि आपको देखें 1 2 2 is divisible by 1 belong to R, so this implies 1 2 है भाई, 2 1 is not belong to R, for all values of 1 or 2 belong to set A।
देखिए जब 1 और 2 तो है, क्योंकि 2 1 से भाग हो जाता है, लेकिन 2 1 हम देखते हैं तो वो आर में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 2 से डिविजिबल नहीं है। तो इट मीन्स हमारी जो डेफिनेशन थी ए बी बिलोंग टू आर, दिस इम्प्लाइज बी ए बिलोंग टू आर, ये डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं होती, क्योंकि ये बी ए इज नॉट बिलोंग टू आर आ गया। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। नंबर 3, ट्रांजिस्टिव। देखिए ए बी बिलोंग टू आर, एंड बी सी बिलोंग टू आर। दिस implies ए सी बिलोंग टू आर। हमारी डेफिनेशन जो है सेटिस्फाइज की फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए बी सी बिलोंग टू ए। फॉर एग्जाम्पल्स आप समझिए इसमें, एच 2 2 बिलोंग टू आर एंड 2 4 बिलोंग टू आर। तो दिस implies 2 4 belong to R. So therefore R is transistive. So hence the relation is reflexive and transistive but not symmetric. ये symmetric नहीं है, transistive है। यदि आपको फिर भी क्लियर नहीं होता, आप इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लो, और जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे तो क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन को। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। मान लिया एक रोस एक रोस में 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। देखिए ये आपकी कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गई। अब हमने रिफ्लेक्सिव प्रूव किया था। देखो 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, 5 5 भी है, 6 6 भी है। क्लियर हो गया? बिल्कुल यही चीज़ होनी चाहिए थी हमारी डेफिनेशन में। अब हमने लिखा नॉट सिमेट्रिक। अब नॉट सिमेट्रिक देखो हमने 1 2 ले लिया पेयर्स, कहीं 2 1 है मिल गया। 1 3 ले लिया तो 3 1 भी है, 1 4 ले लिया 4 1 भी है, 1 5 ले लिया 5 1 भी है, 1 6 ले लिया 6 1 भी है। लेकिन जब हम देखिए कुछ पेयर्स लेते हैं, अब देखिए अब ये पेयर्स तो देख ली, लेकिन हमने डिविजिबिलिटी देखनी है।
अब डिविजिबिलिटी ये क्या है, 1 2 और 2 1 है। जब हम इसमें देखते हैं क्या ये 2 1 से भाग होता है, लेकिन 2 1 से भाग नहीं होता। 3 1 से भाग होता है, लेकिन 1 3 से भाग नहीं होता। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे कि ये सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि हमने तो टेस्ट किसका देखना था, डिविजिबिलिटी का। अब ट्रांजिस्टिव में देखें हमने, भाई ए बी बिलोंग टू आर और बी सी बिलोंग टू आर, दिस इम्प्लाइज ए सी बिलोंग टू आर, तो ए बी सी आर दिस बिलोंग। जब हम देखते हैं भाई हमने 1 4 ले लिया और हमने 4 3 ले लिया, 2 पेयर्स उठा लिया हमने, मान लिया एक ये ले लिया और एक ये ले लिया। अब इसका मतलब 1 3 भी होना चाहिए, तो 1 3 देखते हैं कहाँ पर है, ये रहा, ये मिल गया। अब इट मीन्स, अब ये देखो 3 1 से भाग होता है, 4 1 से भाग होता था। तो इस तरह के पेयर्स हमने इसमें से अपनी कार्टेशियन में डिविजिबिलिटी वाले पेयर्स लेने हैं। तो आर इज ए ट्रांजिस्टिव। तो हमारे दिस, अब हम एक क्वेश्चन और ले सकते हैं। एक क्वेश्चन और ले लें हम इसमें कोई भी एक, सो दैट आर विद द रिलेशन ऑफ, ये कहता है द सेट ऑफ रियल नंबर, the set of real numbers defined as the relation is AB such that A is less than equal to B की 3 B cube square। अब इसने पूछा है is neither reflexive nor symmetric and non-transitive। नंबर 1 रिफ्लेक्सिव। नंबर 1 रिफ्लेक्सिव एज 1/2 is greater than 1/4 for all values of 1/2 and 1/4 is a set of real number। ये रियल है, तो इज 1/2, सॉरी 1/2 इज 1/2 का स्क्वायर, नॉट लेस देन, क्योंकि 1/4 तो छोटा है और इसने कहा था दोनों नंबर्स 1/2 इज ग्रेटर देन 1/4, तो 1/2 इज नॉट लेस देन 1/2 का स्क्वायर। तो इट मीन्स 1/2 और 1/2 इज नॉट बिलोंग टू आर, दैट इज 1/2 is belong to, for all values of 1/2 is belong to set real number, set of real, belong to real लिख लो। तो therefore R is not reflexive, R is not reflexive। नंबर 2 सिमेट्रिक।
नंबर 2 सिमेट्रिक, एज 2 5 belong to R and 2 is less than 25, either 2 is less than 5 का स्क्वायर, तो therefore 2 5 belong to R हमारे रिलेशन में है। Therefore phi 2 is not belong to R, but phi is greater than 2 का स्क्वायर। तो therefore 2 phi belong to R. This implies phi 2 is not belong to R, and 2 and phi, for all values of 2 and phi belong to set of real. So therefore R is not symmetric. R is not symmetric. नंबर 3 ट्रांजिस्टिव, एज 3 minus 2 and minus 1 belong to real. 3 is less than minus 2 का स्क्वायर and minus 2 is less than minus 1 का स्क्वायर, तो therefore 3 minus 2 belong to R and minus 2 and minus 1 belong to R. So this implies 3 or minus 1 is not belong to R. Not belong to R. For examples, because 3 is not less than minus 1 का स्क्वायर, तो therefore R is not ट्रांजिस्टिव। ठीक है, बाकी एक्सरसाइज कल देखेंगे, आज का लेक्चर यही है।